Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome in today's class on the behalf of Subrat Singh Children Academy, Jaunpur. And as you know, I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic of your chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. And all my dear students, this is the last topic of your chapter number 5. So here is the good news. This is the last topic of your chapter number 5, that is pedigree analysis, and this is the most complicated and most important point for your competitive examination as well as board examination. So I am requesting to all the students, just please watch complete video, and it is guaranteed that after watching complete video there will not be any doubt or any problem. And I am also ensuring you to all, among all the YouTube channels, here there will be best representation, and after watching the video you will able to clear your doubts. So I am not wasting the time, straightforward moving towards your topic. Actually, what is pedigree analysis? Pedigree analysis is the study of pattern of inheritance in the form of a diagram. यानी पेडिग्री एनालिसिस में हम एक पर्टिकुलर डायग्राम के माध्यम से एक पूरी फैमिली की हिस्ट्री को ब्रांचिंग ट्री टाइप माध्यम से करते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वेरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स. दोज आर ऑटोसोमल, दोज आर सेक्स लिंक्ड, दोज आर डोमिनेंट, दोज आर रिसेसिव. हाउ वी विल डिस्कस one by one. So few points already written on your board. Pedigree analysis, what is a chart showing the record of inheritance of certain traits for two or more ancestors generation. जैसा मैंने आपको बताया, ये एक चार्ट होता है, एक वेब चार्ट, एक डायग्राम होता है जो ये बताता है किसी भी इनहेरिटेंस मैकेनिज्म को या इनहेरिटेंस के पैटर्न को इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग ट्री. ओके, यहाँ पे देखिए ह्यूमन बीइंग या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दोनों के केस में ये होता है in the form of diagram of family tree, and follow the movement and distribution of genetic traits. सबसे important क्या है, it can be done in the case of human being as well as domesticated animals. उम्मीद है समझ गए होंगे. एक डायग्राम होता है, एक चार्ट होता है किसी भी फैमिली की दो या दो से अधिक जनरेशन को पढ़ने का, ठीक है. हाउ there are certain symbols and there is no shortcut, there is no trick can be applied here. You have to remember the symbol, you have to identify the symbol. There is no shortcut and never go through any shortcut, it is not possible, ठीक है. तो सबसे पहले females are just represented by means of a circle. एक सर्कल के माध्यम से फीमेल को यहाँ दिखाया गया है. Males are represented by means of a square, ठीक है. अफेक्टेड फीमेल्स, यहाँ पे पूरा डार्क, अगर जो यहाँ पे सर्कल है ना उसको डार्क कर दिया जाए, गोले को डार्क कर दिया जाए तो वो होता है अफेक्टेड फीमेल. सेम होता है बेटा यहाँ पे अफेक्टेड मेल के केस में, जो स्क्वायर होता है इसको पूरा भर दिया जाता है. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मैंने बॉक्स में रखा है, it is very crucial and very important and most of the students got confused here. So आपको यहाँ confusion नहीं होगा. Actually if this type of situation, जैसा होता है ना कि चंद्रमा आधी आपको, मून आपको आधा दिखता है, उसी तरह से ये जो सर्कल है ना फीमेल वाला, अगर आधा आपको मार्क किया हुआ भरा हुआ दिखेगा, so that just representing the carrier females. Same with carrier males, but this is only for autosomal disorders. ये सेक्स क्रोमोसोम के लिए नहीं है. I will repeat once again, this is not for sex chromosome, this is just for autosomes. Autosomes के केस में इसका आप यूज करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के केस में नहीं करोगे, ठीक है. Let's come to here. This simply representing the mating, reproduction और क्रॉस, ठीक है, जहाँ पे मेल और फीमेल ये आपस में क्या करते हैं, क्वाइटस करते हैं. तो ये आपकी क्या है, फीमेल है, दिस वन इज मेल, और ये जो लाइन है इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल ऑफन कंफ्यूज हियर, कंफ्यूज नहीं होना है. अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ठीक है, डबल बॉन्ड अगर लग गया बेटा, इट मीन्स दैट मैटिंग विड बी इन द क्लोज रिलेटिव. बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं आपकी फैमिली की, बहुत, जैसे रॉयल फैमिली आप मान लीजिए,
रॉयल फैमिली जो क्वीन विक्टोरिया के लंदन में थी, वहाँ पे लोग आपस में ही शादियाँ कर लेते, खुद की भाई बहन से शादी कर लेते थे। तो सेम उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। दिस इज द, इसको हम कहते हैं ना कंसेजिनस मैटिंग, कंसेजिनस मैटिंग, बोथ द कॉन्सेप्ट। ये आपका सिंबल, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेजिनस मैटिंग इट मीन्स दैट रिप्रोडक्शन बिटवीन द क्लोज रिलेशन और क्लोज रिलेटिव्स। नेक्स्ट, ये जो आपको टी का शेप दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, अगर कोई भी सिंबल बना हुआ है, चाहे मेल के केस में हो या फीमेल, स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, या सर्कल बना हुआ है, तो आप कह सकते हो अगर इसको हमने एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर रखा है, दैट इज एज एडॉप्टेड चाइल्ड। ऐसे सिचुएशन में वो क्या है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, किसी के द्वारा गोद लिया गया है। दीज टू क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब ये इनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। दीज आर डिसीज्ड और दिस रिप्रेजेंटिंग सिंपली डेथ। ओके, कम्स टू हियर, दिस सिचुएशन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द ट्विंस। ये आपको दिखाया जा रहा है ट्विंस। अगर यहाँ पे एक लाइन होती, अलग अलग मेल फीमेल हम बनाते, तो वो ट्विंस नहीं होती। सिंपली ये ट्विंस बता रहा है। ट्विंस एज यू नो दे आर identical and non-identical twins. So identical twins and non-identical twins. These are the presentation of the non-identical twins. Here both the offspring is here female, यानी जो twins हमको मिले दोनों की दोनों बच्चियां हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों गर्ल्स हैं। तो ये आपस में क्या दिखा रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को। हियर अगर ये दोनों जो बच्चियाँ यहाँ पे थे, बच्चे यहाँ पे थे, इनको हमने एक बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिकल ट्विंस को। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। व्हाट वी विल डन इफ सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, सो वी विल यूज़ दिस सिंबल। अगर बेटा सेक्स स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करोगे, वी हैव टू यूज़ दिस सिंबल, we have to use this symbol, sex not specified. This point is also important. अगर बेटा सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिम्बल्स। ठीक है, कभी कभी बेटा एक और सिंबल आपको दे दिया जाता है लाइक दिस, ये बेंजीन नहीं, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे 5 लिखा रहता है, इसको आप S मत पढ़िएगा। तो ये क्या करता है, 5 अनअफेक्टेड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स 5 अनअफेक्टेड जनरेशन, दिस रिप्रेजेंट्स सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है बेटा, भूलेगा तो नहीं, भूल जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे स्पेस बना के लिखता हूँ, दिस वन इज अनस्पेसिफाइड सेक्स। अगेन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, यहाँ पे 5 लिखा हुआ जिसको आप S कॉमनली पढ़ोगे, 5 अनअफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। ध्यान देना है बेटा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अनस्पेसिफाइड सेक्स, मेल फीमेल में वो हम स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 ऐसी ऑफस्प्रिंग हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो अनअफेक्टेड हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंबल्स। नाउ वी विल डिस्कस all those disorders with examples along with pedigree one by one. First of all we will discuss autosomal dominant, then we will discuss autosomal recessive, then we will discuss sex chromosomal. तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा autosomal disorder that is in dominant form. Here we can consider the example of Huntington's chorea, widow's peak, as well as rolling of tongue. So widow's peak, rolling of tongue is a part of your board examination, practical board examination, and definitely you will get any one, या तो आपको rolling tongue या तो widow's peak मिलेगी स्पॉटिंग में। So you have to prepare it. तो मैं आपको बताऊंगा एक तीसरा एग्जाम्पल भी लेके, Huntington's chorea, widow's peak and rolling of tongue. We will consider autosomal dominant disorder first, then हम आपको बताएंगे autosomal recessive in which we will consider sickle cell anemia. You can also consider phenylketonuria, you can also consider thalassemia and various more. तो सबसे पहले
अब मैं बताता हूँ आपको क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द ट्रिक टू फाइंड आउट various kind of pedigrees. Without wasting the time, the probable types of pedigree are autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant and X-linked recessive. Then how we will find out? The pedigree? Trick number 1. In the case of autosomal dominant, there will not be any skip generation. It means that if disease is present in the parent, it may be present in the offspring. Second, affected parents can have unaffected children. Suppose any parent was suffering from the disease, so it is most often that some of their child will not be affected. It means that if a person or if a parents have 4 children, it is possible that in 2 there will be disease and 2 may be normal. So it will follow both rule. There will not be skip generation 2 because in 2 child's disease are present and in 2 disease are not present, hence following the second. Autosomal recessive. How you will find out? Example here, Huntington's chorea, widow's peak, rolling of tongue. All these two, widow's peak and rolling of tongue, you will get into practical examination here. Sickle cell anemia, phenylketonuria, albinism, alkaptonuria, all are the examples. Here there will be skip generation. It means that it is possible that if there is no disease in the case of parents, it may appear in the childs. So here unaffected parents can have unaffected children. जो ऊपर है वही नीचे भी है. Okay. Here third, X-linked dominant. What is the relation of this? Actually, vitamin D resistant rickets is the example of this. This is not part of your syllabus. How we will identify? Disease will never transfer from father to son. That follow the criss-cross inheritance. Disease will never transfer from father to son, as well as all daughters of unaffected father will be affected. It means that disease will transfer from father to daughter, not from father to son. Let's consider X-linked recessive. Example of that is, as you know, hemophilia. Here males are more affected in comparison to females because males are hemizygous. It means that they have only one X chromosome, while in the case of females there are 2 X chromosomes. So it is very rare that on both 2 chromosomes defective genes are present. So if defective genes are present on a single X chromosome, it may cause defect or it may cause the disease in the case of male. So male have only one X chromosome, and unfortunately if we get the defective gene, offspring will be, or we can say that person will be affected. So here disease transfer from mother to son and father to daughter. Okay, so males are more affected and disease will transfer from mother to son as well as father to daughter. So all these are the tricks, and on the basis of these tricks we will identify the various kind of pedigree. So let's start by considering the example of one, that is what? Autosomal dominant. तो यहाँ पे मैंने बेटा एक ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके लिए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, और इस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में आप ले सकते हो हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया, विडोज पीक, एक और आप ले सकते हो रोलिंग ऑफ टंग. सपोज दिस पेडिग्री इज गिवन. अब ये पेडिग्री अगर आपको दे दी गई, अब आप कैसे पता करोगे कि ये ऑटोसोमल है कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर है? ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो, हमने एक ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक टू आइडेंटिफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द फर्स्ट रूल. अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन. यानी अगर माता या पिता में से कोई भी अफेक्टेड था तो ये पॉसिबल है कि उसकी जो संतान है उसमें वो नॉर्मल हो जाए, उसको डिजीज ना हो. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, डू नॉट सो स्किप जनरेशन. डू नॉट सो स्किप जनरेशन. इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर पेरेंट में था
तो उसकी जो किसी न किसी एक ऑफ स्प्रिंग में वो डिजीज़ ज़रूर होगी। अब आप कहेंगे सर दोनों पॉइंट में हमको विरोधाभास लग रहा है। आपने पहले पॉइंट में बताया कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, कोई ज़रूरी नहीं बता कि अगर कोई एक पेरेंट था, ठीक है, उससे केवल एक ही संतान हुई, उस कंडीशन में ये रूल लागू नहीं होगा, उस कंडीशन में ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब अगर कोई एक पेरेंट था, उसकी 3, 4 या 5 संतानें हुई, देन वी कैन यूज़ दिस। तो अगर ये वाला रूल नहीं लग रहा है तो ये वाला लगेगा, अगर ये नहीं लग रहा है तो ये लगेगा। आउट ऑफ दीज टू ट्रिक्स वन विल डेफिनेटली वर्क। लेट्स सी हियर। एज यू नो दिस इज व्हाट मदर, हिज फादर, ओके, यानी यहाँ पे फीमेल क्या है बेटा, अफेक्टेड है, मेल क्या है, अनअफेक्टेड है। लेट्स कंसीडर द प्रोजनी, ठीक है, दिस इज द प्रोजनी नंबर 1, दिस इज द प्रोजनी नंबर 2, दिस इज द प्रोजनी नंबर 3 एंड दिस वन इज द प्रोजनी नंबर 4। आप कहेंगे सर ये नहीं है ना, अरे देखो इसको हमने अटैच नहीं किया हुआ है। सो इस पेरेंट के पास टोटल 4 बच्चे थे। आउट ऑफ दीज 4 1 फीमेल एंड 1 मेल गॉट अफेक्टेड, और यहाँ पे एक फीमेल और एक मेल में डिजीज नहीं हुई। तो हमने जैसा बताया था कि अगर संतानें 3, 4, 5 हैं तो ये पॉसिबल है कि कुछ में हो कुछ में ना हो। ठीक है बेटा, तो पहला आपका रूल लागू हो गया। दूसरा देखिए, डोंट स्किप जनरेशन। अब देखिए ये आपकी F1 जनरेशन थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ स्प्रिंग में डिजीज गई, ऐसा नहीं है कि ऑफ स्प्रिंग में डिजीज ना जाए F1 जनरेशन में। ठीक, तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग में F1 जनरेशन में डिजीज मिली, बट सभी में नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि F1 जनरेशन में किसी के पास डिजीज ही नहीं थी। अगर F1 जनरेशन में किसी के पास डिजीज ना होती तो उसको हम कहेंगे दैट इज स्किप जनरेशन। बट हियर इन F1 जनरेशन 1 मेल एंड 1 फीमेल गॉट अफेक्टेड, दैट्स व्हाई दिस डू नॉट शोइंग द skip generation, and here unaffected children are also obtained in which 1 male and 1 female is not affected। तो ये तो पहला रूल हो गया। अब देखिए, unaffected male got married with unaffected female, यानी जो F1 जनरेशन में था unaffected male था, उसने unaffected female से शादी कर ली। और दूसरी कंडीशन थी, जो affected female थी बेटा, कौन सी, अफेक्टेड फीमेल, उसने नॉर्मल मैन से शादी की। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 सिचुएशन आपको मिल रही है। पहली सिचुएशन, मेल जो कि क्या था, अनअफेक्टेड था, उसने क्या किया, अनअफेक्टेड फीमेल से शादी की। तो देखिए सारी की सारी संतानें उसको अनअफेक्टेड मिल गई। इसका मतलब क्या था, अगर मेल या फीमेल में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो उसकी संतानों में वो नहीं जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, यहाँ पे चूंकि फीमेल अफेक्टेड थी, मेल अनअफेक्टेड था, इस वजह से यहाँ पे जो फीमेल मिली वो क्या मिली, अफेक्टेड मिली, अफेक्टेड फीमेल, और जो मेल मिला वो क्या मिला, नॉर्मल मेल। यहाँ पे भी क्या है, नॉर्मल मेल है। ठीक है, okay students, so let's find out, this pedigree is given and you have to find out that which type of pedigree is that. So there are 4 options: autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant and X-linked recessive. Let's find out. In autosomal dominant we have told you that don't skip the generation. So find out here, in the case of parents disease is present, in the case of offspring also disease is present. It means that there is no skip generation. Here also disease is present in the father and disease is also present in the son. It means that here also there is not any skip generation. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, so here skip generation is not present. Second, we have told you that in the case of autosomal dominant, affected parents have unaffected child. So these two are affected. Let's find out, there are total 3 children. Out of these 2 are affected and 1 is unaffected. It means that affected parents may have also unaffected child. So 2 point आपको दिखे, because here there is no skip generation as well as unaffected childs are obtained from affected parents. That's why this is what
autosomal dominant. Why this is also autosomal dominant? Because of no skip generation, no skip generation, and affected parent have also unaffected child. ये दो पॉइंट है, इस वजह से इसको हम मानेंगे क्या? दिस वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. नाउ वी विल कंसीडर द पेडिग्री इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की बेटा, जो कि था ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव. और इस ऑटोसोमल रिसेसिव में हम एग्जांपल लेंगे किसका? वी आर गोइंग टू कंसीडर द एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया. Let's consider the offsprings. This one is just male 1 2, दूसरा मेल, और ये तीसरी फीमेल, चौथा बच्चा इनका फीमेल, पांचवा एक और है इनकी बड़ी फैमिली थी. ये क्या है? ये भी मेल है. इसमें से एक मेल क्या है? अफेक्टेड है. एक फीमेल यहाँ पे क्या है? ये भी अफेक्टेड है. और बाकी सारे क्या हैं? नॉर्मल है. अब देखिए रिस्ट्रिक्ट को आजमाइए. अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी देखिए पेरेंट्स क्या थे? अनअफेक्टेड थे, और इनके चिल्ड्रन क्या हैं? अफेक्टेड हो गए. ठीक है, अब मान के चलते हैं किसी एक की शादी कराते हैं. मान के चलते हैं इनकी शादी कराते हैं. इनकी शादी हो गई किसी एक नॉर्मल मैन से. ठीक है, अब इनकी शादी हुई तो क्या रिजल्ट आएगा? बच्चे होंगे बेटा, एक मेल और फिर फीमेल और फिर से फीमेल. तो ये आपका अफेक्टेड हो जाएगा, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? अनअफेक्टेड हो जाएंगे. अब देखिए फॉर्मूला यूज़ करिए आप, यानी स्किप जनरेशन पेरेंट्स में नहीं था, ऑफस्प्रिंग में पहुंच गया. दूसरा देखते हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. यस, यहाँ पे पेरेंट्स देखिए अनअफेक्टेड थे, मेल फीमेल. पहले जनरेशन देखिए इनकी, फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन, मेल नॉर्मल, मेल अफेक्टेड, फीमेल. देखिए इनका बच्चा नंबर 1 था, चाइल्ड नंबर 2 3 4 5, and out of 5 1 male and 1 female were affected and rest of the normal. यानी ये फार्मूला लग गया. यहाँ पे देखिए फिर से वही फार्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है. इन दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं था, लेकिन जो मेल हुआ 1 2 3, इनके 3 संतानें हुई, उसमें से किसी एक में ये डिजीज़ है. सो दिस वन इज ऑल अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो उनके पेरेंट्स में नहीं है तो वो आगे चलकर हो सकती है बच्चों में. लेकिन अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट थी तो अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन. यहाँ इसी का उल्टा था, वहाँ पे अगर अफेक्टेड पेरेंट्स थे तो अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते थे. दूसरा, डोंट स्किप जनरेशन, स्किप जनरेशन नहीं होता था. देखिए मदर अफेक्टेड थी, फादर नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड हुई F1 जनरेशन में. फिर ये जो आप देख रहे हैं मेल नॉर्मल वाला था, इसके नॉर्मल हमने फीमेल से शादी करा दी, तो नॉर्मल मेल की जब नॉर्मल फीमेल से शादी हो गई तो ये सभी क्या हो गए? किसी में भी डिजीज़ नहीं दिखी. ठीक है, इसका मतलब वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है. अगर किसी में डिजीज़ नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं हो रही है. ठीक है, अगर वो रिसेसिव होता तो एक्सप्रेस हो जाता. डोमिनेंट है, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. डोमिनेंट होने का मतलब किसी एक में होगा ना, तभी तो डोमिनेट करेगा. यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है. ठीक है, फिर इसकी देखिए अफेक्टेड फीमेल थी, मेल से शादी करा दी, तो यहाँ पे देखिए अफेक्टेड फीमेल मिल गई. यानी यहाँ पे भी ये ट्रेट था तो यहाँ पे दिखा, ये ट्रेट था तो दिखा, इसका मतलब डोमिनेंट है. ये ट्रेट नहीं था तो नहीं दिखा, इसका मतलब भी डोमिनेंट है. हमारे पास अगर मान के चलते हैं पैसे नहीं है तो नहीं दिखेंगे ना, है तो मैं दिखाऊंगा कि है मेरे पास. Okay, let's consider this pedigree and you have to find out that which characteristic is here. Let's consider because we are considering with X linked dominant. आपको पता चल जाएगा ये डिजीज X लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है. अभी
Let's consider here father is affected. Father is affected and there are 3 daughters, 1, 2, 3, and all the daughters are affected. What is the clue number 1? Disease transfer from father to daughter. Disease transfer from father to daughter. And recall, हमने आपको बताया था दिस इज इन द केस ऑफ एक्स लिंक. अब आपको ये पता करना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. हाउ यू विल आइडेंटिफाई. दिस डिजीज वॉज इन द केस ऑफ फादर, ऑल द daughters आर अफेक्टेड. ओके, लेट्स कंसिडर हियर अगेन द डिजीज वॉज इन द केस ऑफ मदर, एंड हियर इफ द डिजीज वॉज इन द केस ऑफ मदर, इट affect both daughters and sons. It means that here the disease is transferring from the mother to the son. It means that disease कहाँ जा रही है? mother से son में. And mother is also transferring the disease. Mother is also transferring the disease into the daughters. It means that if the disease is transferred in the case of both daughters and sons via mother, it means that we can say that it is X linked. ये क्या है? X linked है. अब ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है. अब फिर से कैटेगरी आप यहाँ से देखिए. अगेन हियर फादर वॉज अफेक्टेड एंड द डिजीज इज ट्रांसफर टू daughter. It means that it is clear here disease is transferring from father to daughter and mother transferring the disease to son. Once again let's find out here. Here mother affected, but here both son and daughters are affected. It means that इसका मतलब क्या है? ये X link होने के साथ साथ क्या है बेटा? Dominant. Let's consider once again. Here mother was affected, और जब मदर अफेक्टेड थी तो डॉटर्स में और सन दोनों में डिजीज़ जा रही है. इसका मतलब फादर से डॉटर में और मदर से सन में डिजीज़ जा रही है. इस वजह से ये क्या है? एक्स लिंक डोमिनेंट. अब हम यहाँ से एक लास्ट कैटेगरी देखेंगे, एक्स लिंक्ड बट रिसेसिव. लेट्स कंसीडर दिस कैटेगरी. हियर यू कैन सी मदर इज अफेक्टेड and here in the F1 generation there are 1, 2, 3 and 4 children, and out of these 4, 1 and 2 both the sons are affected. It means that here disease is transferring from mother to son. तो यहाँ पे बेटा ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक्स लिंक्ड है. अब ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये कैसे पता चलेगा? डिजीज डोमिनेंट या रिसेसिव है कैसे पता चलेगा? हमने बताया था इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल्स आर मोर अफेक्टेड इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. लेट्स फाइंड आउट. हियर एज यू नो फीमेल हैड डिजीज, बोथ द मेल्स गॉट अफेक्टेड. हियर यू कैन फाइंड आउट both were affected here, but there was 2 male that was affected and only single female affected. And here let's find out none of these were affected, but here again son is affected. So what is clue? Clue is that males are more affected. Males are more affected. Okay, disease transferred from mother to son. From mother to son. Third, you can find out unaffected parents have affected child. This is the character of recessiveness. If unaffected parents have affected child, that trait is showing recessive trait. यहाँ से देखिए कोई भी अफेक्टेड नहीं था, लेकिन उसकी ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड हुई जो कि एक रिसेसिव का करेक्टर है, तो ये रिसेसिव हो गया. एक्स लिंक्ड क्यों है? हियर बिकॉज मेल्स आर मोर अफेक्टेड एंड डिजीज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम मदर टू द सन्स, नॉट फ्रॉम फादर टू द सन. सो दैट्स वाई दिस इज एक्स लिंक्ड. दैट वाज इन द केस ऑफ ऑल्सो
विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स, एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक कब होगा? जब डिजीज कहाँ मदर से सन में जाएगी, ना कि फादर से सन में। ओके। दूसरा ये रिसेसिव कब होगा? जब अनअफेक्टेड पेरेंट्स के पास अफेक्टेड चाइल्ड आ जाएंगे, दैट कंडीशन विल रिजल्ट इन द रिसेसिवनेस। सो दिस वन इज व्हाट? एक्स लिंक्ड recessive disorder, X linked recessive disorder। ओके बेटा, ध्यान से देखेंगे। एक्स लिंक डिसऑर्डर जो कि क्या है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहा गया है, रिसेसिव है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स लिंक डिसऑर्डर। अब इस ट्रिक का यूज करके यहां से फाइंड आउट करो। मैंने इधर बेटा पूरा एक इनहेरिटेंस का पैटर्न और इधर पूरा पेडिग्री बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए, फादर वॉज अफेक्टेड, चूँकि ये क्या है? रिसेसिव है, इस वजह से ये क्या है? XH स्मॉल लेटर में दिखाया गया है। Y कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चूँकि एक्स लिंक्ड है, इस वजह से Y क्रोमोसोम पर नहीं है। मदर है, मदर को कैपिटल S से दिखाया गया, मतलब ये सभी के सभी क्या हैं? नॉर्मल हैं। ठीक है, इसको आप XX भी ले सकते हो। गैमीट्स बनेंगे, इधर एक गैमीट बनेगा। ठीक है, हमने आपको प्रॉब्लम ना हो इस वजह से 2 बना दिया है, क्योंकि XH ही है, इस वजह से आप इधर क्या बना सकते हो? XH केवल एक बना सकते हो। ठीक है, इनकी जब क्रॉस होगी तो F1 जनरेशन में देखिए, जैसा मैंने लिखा है कि किसी भी कंडीशन में फादर से सन को डिजीज नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी मेल हैं सब नॉर्मल दिख रहे हैं, और जितनी फीमेल्स हैं वो कैरियर्स हैं। उसके बाद F2 जनरेशन में ये आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये कैरियर फीमेल है, अफेक्टेड मेल है, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। यानी F2 जनरेशन में भी एक पर्टिकुलर मेल को डिजीज होती है, एक नॉर्मल होता है, एक फीमेल नॉर्मल होती है और एक कैरियर होती है। यहाँ से देखिए, नॉर्मल फीमेल है, हमने एक सर्कल में दिखाया। अफेक्टेड फादर है, स्क्वायर जो कि डार्कन किया हुआ है। जैसा मैंने बताया, F1 जनरेशन में देखिए इनकी ऑफ स्प्रिंग, टोटल इनके कितने बच्चे हुए? 4, 1, 2, 3, 4। आउट ऑफ दीज 2, ये दोनों जो दिख रहे हैं मेल, ये नॉर्मल होंगे, ये कैरियर्स हैं बेटा, लेकिन ये दिखती नहीं है, ये सीन हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैरियर ही हमको दिखाना पड़ेगा। इसमें से किसी एक कैरियर की शादी एक नॉर्मल मैन से हो गई। आने वाले ऑफ स्प्रिंग में देखिए क्या होगा? एक नॉर्मल मेल होगा, एक अफेक्टेड मेल होगा, एक नॉर्मल फीमेल होगी और एक कैरियर फीमेल होगी। यानी डिजीज यहाँ से देखिए फादर से कहाँ जा रही है? ग्रैंड सन में जा रही है। एंड सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पेडिग्री अगर दी गई है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको बनाना है कि पेडिग्री को आप प्लॉट करिए, और पेडिग्री प्लॉट करने के बाद उसका प्रोबेबल जीनोटाइप फिनोटाइप निकालिए, तो वो आप कैसे करोगे? तो ये तो आपका तरीका नंबर 1 था, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हो कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या वो सेक्स क्रोमोसोमल है, या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसी तरह से बेटा सेम कलर ब्लाइंडनेस का भी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का भी होता है, हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडेड, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सभी एक तरह से हैं। ऑटोसोमल हमने रिसेसिव में बताया आपको, सिकल सेल एनीमिया सेम उसी तरह से, फेनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, एल्कैप्टेनूरिया, अल्बिनिज्म सभी का एक तरह से होगा। इन द सेम मैनर ऑटोसोमल डोमिनेंस, हंटिंगटन स्कोरिया, विडोज पीक, रोलिंग ऑफ टंग, ऑल दीज विल बी सेम। तो ये तो हो गया आपका, अगर पेडिग्री दी गई है आइडेंटिफाई करना। अगर पेडिग्री नहीं दी गई, आपको प्लॉट करनी है, देन हाउ यू विल प्लॉट, नाउ वी विल कंसीडर दैट। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन है आपका, अ वुमन हुज फादर वाज हीमोफिलिक marries a normal man, they have 3 children, 2 daughters and a son, plot pedigree and find out the probable genotype। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, पेडिग्री नहीं दी गई है, आपको पेडिग्री बनानी है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि एक वुमन थी जिसके फादर क्या थे? हीमोफिलिक थे। तो मान के चलते हैं ये एक वुमन है, इसके बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये हीमोफिलिक है कि नहीं है, या कैरियर है कि नहीं है। तो ये वुमन थी, इसके पिताजी होंगे, और इसके पिताजी होंगे बेटा, इसके क्या थे? यहाँ से मान के चलते हैं अफेक्टेड थे। अब ये नहीं बताया गया कि इनके जो फादर हैं वो अफेक्टेड, इनकी मदर की क्या कंडीशन है। तो मदर को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल मैनर, दे हैव 3 चिल्ड्रेन, यानी ये जो वुमन है इसकी शादी होगी, शादी होगी तभी तो 3 बच्चे होंगे। अब इसके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों में कौन है? 2 डॉटर्स हैं।
तो मान के चलते हैं डॉटर नंबर 1, डॉटर नंबर 2 और एक बेटा है इनका, तो ये हम बना लेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, प्लॉट द पेडिग्री, तो पेडिग्री तो हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अफेक्टेड फादर, इनकी शादी, इनके बच्चे और फिर शादी ये। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, प्रोबेबल जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, अब प्रोबेबल जीनोटाइप का मतलब अगर ये फादर अफेक्टेड है और मदर अफेक्टेड नहीं है, फादर अफेक्टेड है मदर अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है हीमोफीलिया को। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ से, हीमोफीलिया को, क्योंकि हीमोफीलिया में बेटा चूँकि मेल ज़्यादा अफेक्टेड होता है, फीमेल्स हमेशा कैरियर ही होती हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वो अफेक्टेड हो जाती हैं। तो हीमोफीलिया की आपको पता है कि हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो अगर ये अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा XHY। ठीक, अब ये अगर अनअफेक्टेड है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर कैरियर है तो भी नहीं दिखेगा, तो पहली पॉसिबिलिटी XX नॉर्मल, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा XHX, यानी ये नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। हमने आपको बताया था कि ये जो डिजीज़ होती है हीमोफीलिया की, ये बेटों में नहीं जाती, बेटियों में जाती है। तो मान के चलते ये जो फीमेल्स थी, इसके पास क्या चांसेस थे, ऊपर वाला हमने पता कर लिया। अब देखो इसकी जो संतान है यानी फीमेल है बेटा, तो XX क्रोमोसोम होगा, तो यहाँ से एक X क्रोमोसोम और इधर से एक X क्रोमोसोम जो कि अफेक्टेड वाला है, ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, जीनोटाइप होगा। चूँकि ये नॉर्मल है तो इसके पास नॉर्मली क्या होगा, XY। अब इन्होंने कहा कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 फीमेल्स हैं और एक मेल है। ठीक है, अब फीमेल्स में क्या सिचुएशन है और मेल में, अगर ये मेल है तो सिंपल है XY होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये अब अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब अगर ये जो हमको मिले हैं F2 जनरेशन में, ये कौन है, कैसे है, पता लगाना कैसे, आपको पता है ये मेल है तो इसके पास एक Y क्रोमोसोम आएगा, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होना चाहिए। एक X मान के चलते, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला X है, ये वाला Y, तो एक Y क्रोमोसोम ये और यहाँ से ये X चला आया तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्या हो गया XH और Y, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये नॉर्मल होगा या तो ये डिजीज्ड होगा। ठीक, अब फीमेल्स को कंसीडर करो, फीमेल्स में क्या है, फीमेल तभी होगी जब X क्रोमोसोम होगा, तो मेल का नॉर्मल है चूंकि X और फीमेल में X, तो ये हो सकती है XX। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये XH और X भी हो सकती है, यानी कैरियर भी हो सकती हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई अगर XX जा रहा है तो ठीक है, ये वाला इसके साथ आ गया तो दोनों पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी वही XX और XHS, तो इस कंडीशन में ये नॉर्मल और इस कंडीशन में ये कैरियर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबल जीनोटाइप और फिनोटाइप आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था जिसके माध्यम से हमने ये पेडिग्री प्लॉट कर ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लाइक द वीडियो and also subscribe and share the channel. So that is all about for today. Like always, have a nice day and keep smiling.